हेलो एवरीवन मु ज्योतिर्मय आपण मानकु स्वागत करुच्ची आमर ई लर्निंग पॉइंट ओडिशा को। आज आम पार्ट 7 डिस्कशन करबा इतिहास और राजनीति विज्ञान रो जो सीरीज हमर चलीतला फंडामेंटल कोर्स सिटी एवं बीएड एवं एही फंडामेंटल कोर्स आपन को डिफरेंट काइंड्स ऑफ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे मध्ये हेल्प करिवो लाइक आरआई अमीन एएसओ ओडिशा सिविल सर्विस रो फंडामेंटल कोर्स को मध्ये कोर्स रे हिसाब रे मध्ये आपण याको नै परिबे। এবং ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ପର୍ସନାଲ ଏଇଟା ମୋର ପର୍ସନାଲ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଏଥିରେ ମେସେଜ କରିପାରିବେ। ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଲେକ୍ଚରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଡାଉଟ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଚ୍ୟାନେଲ ଲଞ୍ଚ କରିଛୁ ଯାହାକି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟଡି ଫର୍ ଓପିଏସସି ଫ୍ରମ୍ ସ୍କ୍ରାଚ୍। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଏଏସଓ ଲେଭେଲର କିଛି ଥିଓରି ଏବଂ ଏମସିକ୍ୟୁ ସିରିଜ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଫଲୋ କରିପାରିବେ, ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ ଷ୍ଟଡି ଫର୍ ଓପିଏସସି ଫ୍ରମ୍ ସ୍କ୍ରାଚ୍ କୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି। ଇନଷ୍ଟାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଛୁ, ଏଠିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆମକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ ଷ୍ଟଡି ଫର୍ ଓପିଏସସି ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଥିବି, ଆପଣ ଲିଙ୍କ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଭାରତରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମିକା। କହିବାକୁ ଗଲେ ବିଗତ 6ଟି ଯୋଉ ଆମେ ଲେସନ ନେଇଥିଲୁ ୟା ଆଗରୁ, ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆମେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଭାରତରେ ଆଗମନ ଏବଂ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଭାରତରେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ତାକୁ ଦେଖିଥିଲେ। ତା ସହିତ ଆମେ ଭାରତରେ ଯୋଉ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନ୍ୟାସନାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦେଖିଥିଲେ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ, ନନ୍ କୋଅପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ତାର ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିସ୍କସ କରିଥିଲେ। କହିବାକୁ ଗଲେ 1922 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଚୌରୀ ଚୌରାଠାରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ସେଥିରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ମର୍ମାହତ ହେଇଥିଲେ, ଦୁଃଖିତ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ସିନା ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାର ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବାର ଯୋଉ ଜିଜ୍ଞାସାଟା ବା ଆଶାଟା ସେଟା ମଳି ନଥିଲା, ବେଶୀ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ମଳି ନଥିଲା। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୋଉ ସବୁ ଘଟଣାବଳୀ ଘଟିଛି ଏବଂ ସେଇ ଘଟଣାବଳୀ ସବୁ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ କୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ତିଆରି କରିଛି ତାକୁ ଆମେ ଏଠି ଡିସ୍କସ କରିବା। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ରହିବା ପରେ ଯଦିଓ ଭାରତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ କିଛି ତା ସ୍ଥାଣୁତା ଆସିଯାଇଥିଲା, ତାହା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ନଥିଲା। କିଛି ଦିନ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆନ୍ଦୋଳନ ର ଯୋଉ ବିଭୀଷିକା କମି ଯାଇଛି। ବିଭୀଷିକା ତ କହିଲେ ଠିକ ହବନି, ଆନ୍ଦୋଳନର ଯୋଉ ସୁଦୂର ପ୍ରସାର ବା ଆନ୍ଦୋଳନଠୁ ଧୀରେ 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 ପ୍ରଶମିତ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଶମିତ କରିବାରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ବା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଏଠିରେ ସକ୍ଷମ ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବେଶୀ ଦିନ ନଥିଲା। କୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ ନା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ନିଜକୁ ରଚନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆଉ ମନ ମାନେ ବେଶୀ ନିଜକୁ ଫୋକସ ନ କରିକି ରଚନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବା ପ୍ଲାନିଂ, ଦେଖ ରଚନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କହିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଗାନ୍ଧିଜୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପୁସ୍ତକ ଲେଖିବାରେ বা ଆମେ କହିପାରିବା ସିଏ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକାଲି କୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଅହିଂସା ମାର୍ଗରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ପାରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ସେ ଷ୍ଟଡି କଲେ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରା ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲେ କିଏ ନା ଗାନ୍ଧିଜୀ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଦେଖାଗଲା ନା ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦର ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ଦମନ ଲୀଳା। ଭାରତରେ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ? ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦର ଆରମ୍ଭ ହବ। କହିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ନୀତି କ'ଣ ଥିଲା ନା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ନୀତି ଥିଲା ନା ଭାରତରେ ଅହିଂସା ମାଧ୍ୟମରେ କୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ନିଜକୁ ରଚନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ୟସ୍ତ କରିଲେ, ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ ଏହି ରଚନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେଇ ପିରିୟଡରେ
भारत में उग्र जातीयतावाद आरंभ है मीन्स भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद राजगुरु सूर्य सेन को भली देशप्रेमी माने विभिन्न कार्यक्रम माध्यम इंग्रेज सरकार को व्यतिव्यस्त कर पकाइथिले तो एमाने कौन करथिले ना एमाने अहिंसा माध्यम कौन प्रकार कार्यक्रम करुनथिले सेमाने विभिन्न प्रकार कार्यक्रम करुथिले जहा फल रे इंग्रेज सरकार को घेरिबा पई चेष्टा करुथिले तो ये उग्र जातीयतावाद हिंसात्मक कार्यक्रम करबा पई प्रवर्ताउथिले लोक मानकु किंतु देश हित रे ठीक अछि एवं एई देश प्रेमी मानकु इंग्रेज सरकार आपनकर दमन करबा पई चेष्टा करुथिले तो यही उग्र जातीयतावादी कार्यक्रम चली बेले कांग्रेस द्वारा परिचालित संग्राम किसी स्थाणुता आसला तो उग्र जातीयतावाद तो चली से समय कांग्रेस जो भारतीय जातीय कांग्रेस थिला सेथिरे मध्य किसी स्थाणुता आसी जाइतिला कहबार अर्थ तार जो प्रोग्राम सब चलीतिला सेथिरे मध्य किछि धीमे जाइतिला तांकर प्रोग्राम सब गुडाक हला को भले भाबरे हमें भारतीय स्वाधीनता संग्राम को आगु बढ़ेबा बहुत स्लो मोशन रे चलीतिला किंतु ये गोटे इंपोर्टाट इनसीडेंट है ना कौन साइमन कमिशन गठन घोषणा जो यही स्थाणुता अपसरी जाई स्वाधीनता संग्राम द्वितीय अध्याय पे पथ खोली देइथिला साइमन कमिशन गठन होइछि ठीक अछि साइमन कमिशन गठन हैला एवं सही साइमन कमिशन जो गठन खबरटा सुनिला परे जो कांग्रेस जो लीडर मानक मन रे जो थिबो हाँ देश स्वाधीन करवा धीरे धीरे विभिन्न प्रकार कार्यक्रम बहुत स्लो मोशन चली बर्तमान मन ना बर्तमान मन में आसला जे कौ भाया भाव में भारत जो स्वाधीनता संग्राम चली आहरी आगू नहीं बर्तमान प्रोग्राम सब बहुत स्पीड करेंगे केमी करेंगे देखो प्रसंग ये रोचे ना साइमन कमिशन गठन कौन ना साइमन कमिशन गठन यदि आपको जानवर अच्छी तो यार प्रीवियस हम लेसन रे जो डिस्कस करिथिले ना भारत शासन आईन 1919 आसीथिला एवं ताकू भारत रे लागू करि जाइथिला किंतु सेथिरे कोन थिला ना विभिन्न प्रकार रो आपनकर एमिति नियम थिला जहा कि देश रे हमर लोक मानकू पसंद आसुनथला हमर लीडर मानकू ताकू विरोध करथिले ठीक अछि तो वर्तमान एटी क्वेश्चन आसीबो क्वेश्चन कहबा पर एटी गोटे कांसेप्ट अछि जेंति 1919 भारत शासन आईन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 आपनकर भारत रे लागू हो जाइछि एवं एथिरे गोटे नियम थिला जे भारत रे ए भारत शासन आईन 1919 को भले भाबरे कार्य करूछि ताकू तदारक करिबा पय 10 वर्ष परे गोटे कमिटी गठन करा जिवो अर्थात 1929 रे गोटे कमिटी गठन करा जाइथांता एवं से आसिक भारत रे चेक करिथांता जे को भले भाव में भारत शासन आईन 1919 कार्य करुछि किंतु 1927 मसीह रे ही से कमिटी गठन कर दिया गला साइमन आम को कमिटी नाम रे ना साइमन कमिशन नाम रे एवं सीए भारत को आसिक कौन करिवो ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 को भले भाव में कार्य करुछि ताको तदारक करिवो किंतु एथिरे गोटे प्रॉब्लम एथि थिला जे कौन ना भारत रे सेही कमिशन भारत को जो आसीथिला साइमन कमिशन सेही कमिशन रे जो 7 जण मेंबर थिले से 7 जण मेंबर समस्ते ब्रिटिशर थिले कौन सी मेंबर भारतीय नथिले तो यही खबर सुनला परे यही खबरटी जेते बेले सुनिले लोक माने को लोक माने रे ना भारतीय लोक माने तेते बेले तांको कोन आसिला ना विरोध करले काहा को विरोध करले ना साइमन कमिशन को विरोध करले बुझी होछि ठीक अछि देखो मु पढी दोछि आउतरे बढिया की क्लियर हे देखो यही उग्र जातीयतावादी कार्यक्रम चली बेले कांग्रेस द्वारा परिचालित संग्राम किसी स्थाणुता आसला किंतु साइमन कमिशन गठन घोषणा जो यही स्थाणुता अपसारी जाई स्वाधीनता संग्राम द्वितीय अध्याय पे पथ खोलीदेला 1919 भारत शासन आईन कार्यकारिता अनुध्यान करने 1927 रे सार जॉन साइमन को अध्यक्षतार एक कमिशन गठित होता किए ना सार जॉन साइमन को अध्यक्षतार मात्र दुखर विषय जे एथिरे थिबा 7 जन सदस्यों मध्य जड़े हेले भारतीय सदस्य नथिले ठीक अछि ना समस्त ब्रिटिशर थिले गोरा थिले एही समस्त भारतीय को अपमानजनक बोध होला जेहेतु भारत रे को भले भाव शासन चली ताकू अनुधान करने गोटे कमिटी कमिशन गठन है एवं से कमिशन 7 जन व्यक्ति फरेनर थिले ब्रिटिशर थिले तो यह अपमानजनक बोध होला को मानू ना भारतीय मानू तेणु 1927 भारतीय जातीय कांग्रेस मद्रास अधिवेशन में साइमन कमिशन को वर्जन करने स्थिर करागला तो कांग्रेस मद्रास अधिवेशन में
कौन करा साइमन कमिशन को वर्जन करा जिबा पई स्थिर करागला। तो बर्तमान कांग्रेस रो एही निष्पत्ति को मुस्लिम लीग एवं हिंदू महासभा मध्य समर्थन जणाइतिले। कांग्रेस जो निष्पत्ति नेला जे साइमन कमिशन को आमे विरोध करिबा ताको मुस्लिम लीग एवं आपनकर हिंदू महासभा मध्य सहयोग बा समर्थन जणाइतिले। 1928 फेब्रुआरी 3 तारिख रे एही कमिशन मुंबई रे पदार्पण कला। ठीक अछि। गठन केबे हला ना साइमन कमिशन गठन केबे हला रे ना 1927 मसिया रे। साइमन कमिशन केबे गठन हला 1927 मसिया रे। कोन पय गठन हला ना भारत शासन आईन 1919 को भले भाबरे भारत रे कार्य करूची ताकू तदारक करिवे पय गठन हला। किंतु एथिरे केते जण मेंबर थिले ना 7 जण मेंबर थिले। ए 7 जण मेंबर को मध्यरो एही भारतीय थिले कि भल कि चिंता कर कहीं भारतीय थिले कि ना कौन भारतीय सदस्य नथिले तेणु यार विरोध करागला। ठीक अछि। एवं एही साइमन कमिशन भारत को केबे आस्तिले रे साइमन कमिशन भारत को केबे आस्तिले ना 1928 फेब्रुआरी 3 तारिख रे आस्तिले। ठीक अछि। 1928 फेब्रुआरी 3 तारिख कोठिरे पदार्पण करथिले प्रथम कोड को आस्तिले ना मुंबई को आस्तिले। एवं जेतेबेले से माने मुंबई रे पहुंचिले तो कौ ध्वनि सहित भारतीय माने ताकू विरोध कले ना साइमन फेरी जाओ साइमन गो बैक एई ध्वनि सहित एई नारा सहित भारतीय माने ताकू विरोध कले एवं कला पताका मध्ये ताकू देखाइले। ठीक अछि। एवं विभिन्न सहर रे भारतर विभिन्न सहर रे हड़ताल पालन करा गला एवं कमिशन परिदर्शन करितबा प्रत्येक स्थान रे प्रतिवाद शोभा यात्रा संगठित होइतिला। एही शोभा यात्राकारी माने पुलिस लाठीमाड़ तो सम्मुखीन होइतिले। लखनऊ ठारे जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत पुलिस लाठीमाड़ शिकार होइतिले। लाहौर ठारे पंजाब केसरी नाम रे ख्यात लाला लाजपत राय 1928 अक्टोबर 30 रे साइमन कमिशन विरोधी शोभा यात्रा रे नेतृत्व नौथुवा बेले पुलिस लाठी प्रहार द्वारा छाती रे गभीर भाव रे आघात प्राप्त होइतिला एवं सही कारणरू 1928 नवेम्बर 17 रे मृत्युवरण करथिले। ठीक अछि। देखंतु आउट के डिटेल्स एठी वर्तमान आउट जस्ट कहि दउची 1927 रे आपनकर साइमन कमिशन गठन हला। ठीक अछि। 1928 आपनकर फेब्रुआरी आपनकर 3 रे साइमन कमिशन कोड को आसिला ना भारत को आसिला। तो से जेतेबेले भारत को आसिला साइमन कमिशन सेतेबेले भारतीय माने विरोध करले कला पताका देखैले एवं साइमन गो बैक रो नारा देले। ठीक अछि। किंतु साइमन कमिशन ताको कार्य करले। ठीक अछि। एवं साइमन कमिशन जो जो जगह को गले से स्थान रे कोन हला ना ताकू विरोध करा गला। तो वर्तमान एठी कहा जायछि देखंतु लखनऊ रे जवाहरलाल नेहरू एवं गोविंद बल्लभ पंत पुलिस रो लाठीमाड़ शिकार हेले। लखनऊ रे जवाहरलाल नेहरू एवं गोविंद बल्लभ पंत पुलिस रो लाठीमाड़ शिकार हेले। एवं जेतेबेले साइमन कमिशन को विरोध रे विद्रोह चलीतिला आपनकर 1928 मसिया अक्टोबर 30 रे सेतेबेले पंजाब केसरी किए रे पंजाब केसरी आपनकर लाला लाजपत राय। ताहले इ लाला लाजपत राय को पुलिस रो आपनकर लाठीमाड़ शिकार हेबाक पड़ितला एवं तांकर छाती रे प्रबल गभीर भाव रे आघात प्राप्त होइतिला एवं सही कारणरू आपनकर 1928 मसिया नवेम्बर 17 तारिख रे तांकर मृत्यु हेइतिला। ठीक अछि। तो लाला लाजपत राय मृत्यु आपनकर कहि परिबे आपनकर भारत रे आईन मान्य आंदोलन चलितिबा समय रे हेइतिला। ठीक अछि। वर्तमान आमे देखिबा साइमन कमिशन विपक्ष रे प्रकाश पाइथवा जन असंतोष हेतु देशवासी आउ एक गण आंदोलन पई मानसिक स्तर रे प्रस्तुत होउतबा प्रमाणित होइतिला। तो साइमन कमिशन को विरोध रे जो जन असंतोष देखा जाइतिला एहा परवर्ती समय रे गण आंदोलन हेबा पई मानसिक स्तर रे भारतीय माननकु प्रस्तुत कराइतिला। एवं वर्तमान एठी गोटे इंपोर्टेंट जिंस अछि इंपोर्टेंट इवेंट हेछि देखंतु 1929 मसिया रे 1929 लाहौर ठारे जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्षता रे अनुष्ठित जातीय कांग्रेस रो अधिवेशन रे पूर्ण स्वराज प्रस्ताव अनुमोदन करा गला। तो वर्तमान 1929 मसिया रे कांग्रेस रो साधारण अधिवेशन आपनकर कोठी रे हितिला बा जातीय अधिवेशन आपनकर कोठी हितिला ना लाहौर ठारे हितिला। ठीक अछि। एवं एई लाहौर ठारे जो अधिवेशन हितिला सेथिरे कांग्रेस रो डिमांड कोन रहइला ना कंप्लीट इंडिपेंडेंस पूर्ण स्वराज ताकर दाबी रहिला। ठीक अछि। एवं पूर्ण स्वराज रो अर्थ कहिया को गले संपूर्ण स्वाधीनता
यार घोषणा कले ना संपूर्ण स्वाधीनता कंप्लीट इंडिपेंडेंस दाबी रहिला एवं तार परवर्ती समय रे कौन देखिबा ना 1929 डिसेंबर 1929 डिसेंबर 31 ठीक अछि मन रखिबे डेट टी राबी नदी कूल जवाहरलाल नेहरू स्वाधीनता तिरंगा पताका उत्तोलन करथिले ठीक अछि एवं 1930 ଜାନୁଆରୀ 26 को भारतर प्रथम स्वाधीनता दिवस पालन करने घोषणा करागला तो बर्तमान ये आउथरे आसला ना 1929 रे कांग्रेस रो जातीय अधिवेशन रे कोठी हितला जातीय अधिवेशन आपनकर लाहौर ठारे हितला एथिरे कांग्रेस कोन करला ना पूर्ण स्वराज दाबी करला पूर्ण स्वराज अर्थ संपूर्ण स्वाधीनता दाबी करला एवं 1929 डिसेंबर 31 रे राबी नदी कूल रे जवाहरलाल नेहरू स्वाधीनतार तिरंगा पताका उत्तोलन करथिले ठीक अछि डिसेंबर 31 डिसेंबर आपनकर फर्स्ट 31 रे एवं एथिरे कोन कहा गला ना 1930 मसिया 1930 मसीहा आपणकर ଜାନୁଆରୀ 26 କୁ କଣ କରାଯିବ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଗଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି 1930 ଜାନୁଆରୀ 26 ର ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ଆମ ପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ କଣ ଦେଖିବା ନା ଜାନୁଆରୀ 26 କୁ ଆମେ ରିପବ୍ଲିକ ଡେ ହିସାବରେ ପାଳନ କରିଥାଉ ଠିକ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ आईन अमान्य आंदोलन आरंभ करने पूर्व गांधीजी 11 दफा संबलित शासन संस्कार चिठा प्रस्तुत कर इंग्रेज सरकार को आगे उपस्थापन करते ब्रिटिश सरकार से समस्त प्रस्ताव ग्रहण न कले बाध्य हो गांधीजी आईन अमान्य आंदोलन आरंभ करेंगे बड़लाट लॉर्ड इरुइन को जनईदे मात्र लॉर्ड इरुइन यही प्रस्ताव ग्रहण कर नथिले फल 1930 मसीह गांधीजी आईन अमान्य आंदोलन डाकरा देला तो बर्तमान देखो गांधीजी कौन कले ना गांधीजी बर्तमान 11 दफा संबलित एक शासन संस्कार चिठा प्रस्तुत कले गोटे ड्राफ्ट तैयारी कले जो थे कौ भाया भाव में भारत जो शासन चली कि भाव में रेक्टिफाई कर भाव में ठीक कर 11 दफा संबलित शासन संस्कार चिठा प्रस्तुत करागला एवं भारतर से समय किए थे आपंकर भाईसरय किए थे बड़लाट लॉर्ड इरुइन थे किए थे लॉर्ड इरुइन थे आपंकर से समय भारत में भाईसरय बड़लाट तो तांकू से ड्राफ्ट देले गांधीजी एवं कहले यही जदि ड्राफ्ट टी आपण शासन संस्कार ड्राफ्ट टी आपण जदि एक्सेप्ट न करिवे ताहले आमे आईन अमान्य आंदोलन करिवु किंतु बड़लाट याकू मानिले ना नहीं याकू एक्सेप्ट कले नहीं तो जेहेतु गांधीजी प्रस्ताव को बड़लाट बा भाईसरय एक्सेप्ट कले नहीं परवर्ती समय रे 1930 मसीह गांधीजी आईन अमान्य आंदोलन डाकरा देले ठीक अच्छे तो आज आम एति डिस्कस करवा मु भावुची आपण एई लेसन को भल भाव देखि तो बहुत गुड़ा शॉर्ट क्वेश्चन एथिरे अछि परवर्ती समय रे आमे आंदोलन आरंभ एवं को सब कार्यक्रम हाथ को निया जाइतिला ताको डिस्कस करवा सो थैंक यू।